Hey guys, how you all are? I hope you all are doing well. I'm doing good. Here, this is Ananya Mishra with the channel. Most of you will be knowing. Still, I'm telling it to you. It's Saraswati channel, a god of knowledge, music, and mindfulness. So, in our Chandrayaan batch, we have covered 3 chapters from Classic Geography NCERT in great detail. Now we are moving towards the chapter number 4, which is Maps of Class 6 Geography NCERT. Now let's move into the chapter, and along with this I have update for you all. This week I am going to be oriented to Hindi Vyakaran only, Hindi Vyakaran course, and because my templates for the video have been reduced, and I'm pretty sure that I will create it on Saturday, Sunday. I'm till the day I'm busy almost this week. So wait for the session of Chandrayaan batch, and the video will become sooner in the next week. Okay. Till then, we will gonna cover Hindi Vyakaran course. And one more update about class 6 NCERT courses. They will become after the Chandrayaan if the Hindi Vyakaran course will be completed, because Chandrayaan batch is gonna take some time. Okay, so let's move into the chapter and see what has to be covered. A map is a representation or drawing of Earth's surface or a part of it drawn. If I draw it like this, and here North America, South America, Africa, Europe, no, Eurasia, here Australia, here Antarctica. If I show this, this is our world map. And if I talk about only India, I can simply draw like this. This is our Gujarat coastline. Just simple. I know I can't draw proper western part, but I draw like this. Okay. If you are, if to get good marks in geography, remember one thing. You should all add maps to your drawing, maps to your answer. Okay. If I am talking about the acha, here in my syllabi, I am currently studying about the natural vegetation of India. So what could I simply do? I could draw an India map like this. Okay, and mention the animal found it there. In Gujarat, there is Gir forest lion there. Sundarban, there is Royal Bengal tiger. Here in South India, mainly found as elephants there. Snow leopard in the northeastern states. Okay, I could simply do that. That's mean to enhance your answer, to enhance your marks, to boost up your answers. You should add maps to your geography map. Not only geography, some part in history also. You should add the map. If you are talking about Maurya period, you should add a India, and then mark Maurya period, the expenditure you can add on to it. Okay, maps are very much important. If you don't have atlas, if you don't know, atlas is a, you most of you will be knowing about the atlas, but still I'm going to repeat it. Atlas is a book or a collection of maps of India and world. You should have it and practice the world also. Okay, with the time when you up in the standards, when you will be higher higher classes of 9, 10, 11, 12, you could have to study the world history, the world geography. Okay, so you should have knowledge of it. Okay, प्रॉपर वर्ल्ड ज्योग्राफी तो कुछ नहीं होता, फिजिकल ज्योग्राफी होता है जिसमें आपको इंडिया ओरिएंटेड नहीं पढ़ना पड़ता है, फिर इंडियन ज्योग्राफी होता है, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी होता है. ज्योग्राफी का भी पार्ट बता दिया. अब बात करते हैं हम लोग मैप्स के बारे में. देयर इज पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप एंड थीमेटिक मैप. आई थिंक यहाँ पे जो मैप्स के कुछ भी एग्जाम्पल्स नहीं दिए गए हैं, दैट्स मीन योर मैम हैव टू ड्रॉ. दैट्स मीन मेरा काम है इसका करना.
ओके, सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल मैप्स की। देखो, अच्छा फिजिकल है, पहले फिजिकल कर लेते हैं। अभी मैंने बताया ना फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी दैट्स मीन द रिलीफ फीचर जस्ट लाइक माउंटेन्स, डेजर्ट। आज थोड़ा हम लोग इंडिया को भी जान लेंगे इस मैप में। और आपको पता ही होगा देयर इज ऑल्सो चैप्टर ओरिएंटेड टू आवर इंडिया। फिजिकल फीचर्स, मेजर लैंडफॉर्म्स, आई थिंक सो, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया। ओके, हियर Thar Desert, Deccan Plateau, Central Highland. This one is North Indian Plains. This is the western coast, eastern coast. Sorry, western coast, eastern coast, western mountains, and eastern mountains. Okay, these are the relief feature. Mountains come under it, desert come under it, mountain, desert, plains. Okay, there is Deccan Plateau too. These are physical feature of the earth. It was oriented in my drawing, it was India, but it is considered to be of world. Okay, political map shows the world and states boundaries, just like a map of India showing the states of India, just like अच्छा देखो, अभी जो रिसेंट का न्यूज़ है, एवरीवन इज यूजिंग इंडिया रिप्लेस्ड बाय भारत. व्हाट आर यू ऑल से? आई यूज भारत और इंडिया. ओके, लेट मी यूज भारत. ओके, भारत, a word connected to our heart. Okay, and मुझे थोड़ा प्रैक्टिस में टाइम लगेगा, लेकिन आई विल अडेप्ट इट. ओके, टॉकिंग अबाउट भारत मैप, it is political map of state oriented to state and showing the boundaries. आज हम लोग बहुत ही हाई लेवल पढ़ने वाले हैं. इस एनसीईआरटी में सिर्फ 7 पेजेस में इसे निपटा दिया गया है, लेकिन हम लोग इसे टाइम लेके अच्छे से समझेंगे. ओके, क्योंकि चंद्रयान बैच में तो मैंने बोला ही है, डिटेल कवरेज जो वो है एनसीईआरटी में उससे ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग. ओके, चलो. तो पॉलिटिकल मैप में मैंने जैसे बताया बाउंड्री शोज होती हैं एंड आवर स्टेट्स. देखो, तो फटाफट मैं अगर आपको बता दूँ रिसेंट डेटा, जो अभी मेरा आज डेट है 30 नवंबर 2023. तो 2023 के अपडेट के अकॉर्डिंग देयर इज़ 28 स्टेट, ओके, एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. I don't know I'm right or wrong. Let me correct it one more time. Wait for a while. So here I'm in this my search engine. Here it is clearly mentioned there is 28 states and 8 union territories. Now you all will be confused. Let me go to my screen and gonna tell you what are them. Acha, there is on some more information. Let us read this. From the largest to the smallest, each state and union territory of India has a unique demography, history, culture, dress, festival, language, etc. देखो, अब तुम लोग सोचोगे कि मैम जम्मू कश्मीर को भी तो बनाया गया, लद्दाख को जम्मू कश्मीर से हटाया गया, दैट्स मीन 9 यूनियन टेरिटरीज होना चाहिए था और 27 स्टेट्स होने चाहिए थे. नो 28 रहेगा. अब देखो 9 इसीलिए नहीं होगा बेटा, क्योंकि दामन एंड दीव और जो हावर है हवेली है ना, वो वाली पोर्शन, गुजरात कोस्ट लाइन वाला पोर्शन, वहाँ पे उनको मर्ज कर दिया गया, मतलब वो एक ही है. तो जो 9 होता है ना, उसको फिर से रिड्यूस होकर 8 हो गया और 28 स्टेट्स जो पहले ही था. ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा अभी तक. पॉलिटिकल मैप हम लोग अच्छा, अब हमने समझ लिया स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट, यूनियन टेरिटरी का क्या चल रहा था. अब बात करते हैं हम लोग जो है बॉर्डर शेयर करते हैं. अच्छा, ये थोड़ा मैं कुछ ज़्यादा ही इंडिया के डेप्थ में चली जाऊंगी. ये चैप्टर को हम लोग जो हमारा क्लास 6 की एनसीईआरटी में जो चैप्टर है उसमें ये बाउंड्री वाला डिस्प्यूट को हम लोग समझेंगे. ठीक है. थीमेटिक मैप के अगर हम लोग बारे में बात करें, ऐसा मैप जो एक स्पेसिफिक चीज़ को हाईलाइट करे. जैसे कि अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप लोग को वहाँ पे वेदर रिपोर्ट होगा
वहाँ पे इंडिया को ना, इंडिया लिया गया है। वो इंडिया में सिर्फ, मतलब वो इंडिया में नहीं, मतलब वो भारत वाले जो मैप है उसमें सिर्फ रेनफॉल का डिटेल दिया गया है। अब वैसा ही कुछ कुछ होता है जिसमें सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन, डेवलपमेंट के बारे में बताया गया, एडुकेशन के बारे में। एक स्पेसिफिक टॉपिक पे जब भी बताया जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज आवर थीमेटिक मैप, जो एक थीम ओरिएंटेड है। ओके, डिस्टेंस। अब बात करते हैं स्केल के बारे में। स्केल एक रेशियो है बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस ऑन द मैप। जैसे अब हम लोग को फुल वर्ल्ड को बताना है, वर्ल्ड इज़ वेरी लार्ज बेटा। ये सिर्फ कहने को होता है कि दुनिया गोल है, हाँ सॉरी दुनिया छोटी है। नहीं, दुनिया छोटी नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है, पता है, मतलब दुनिया इज़ लिजिट वेरी मच बिगर। सो मैं पता नहीं कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर दी, तो दुनिया क्या है, बड़ी है, तो उसको फुल पेपर को अगर हमको पेपर में लाना है तो बस तब तो हो गया, राम राम सकते हैं। देखो, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, 10 किलोमीटर को अगर हम, फॉर एग्जांपल तुम लोग कैसे भी ले सकते हो, 10 किलोमीटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2 सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर में या 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर में, ऐसे करके हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है स्मॉल स्केल मैप का और लार्ज स्केल मैप का। अगर इसमें आप लोग को, मोस्ट ऑफ यू कुड फेस दैट प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप। अब मैं बताती हूँ इसका कॉन्सेप्ट, लेकिन कॉन्सेप्ट बताने से पहले तुम लोग लाइक शेयर क्यों नहीं करते? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो जो डाउट है। अगर डाउट नहीं है तो टेल मी, हाँ मैम मेरे पास कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर हो गया। मतलब मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएशन, पता है ना, उतना कुछ अप्रिशिएशन पे नहीं जाना चाहिए, बट इफ़ यू अप्रिशिएट समवन ना, इफ समवन इज़ डूइंग दैट, देखो मैं अपने बिजी स्केड्यूल से आई एम टेकिंग आउट 1 आवर फॉर यू ऑल। तुमको शूट में सिर्फ 14 मिनट्स दिखे होंगे या 20 मिनट्स दिखता होगा, बट इट ऑक्योर लॉट ऑफ थिंग, पता है। तो प्लीज़ अप्रिशिएट इट ना, प्लीज़। जितने व्यूज़ हो रहे हैं ना, आई एक्सेप्ट कि जितने लोग देख रहे हो कम से कम लाइक कर दिया करो, अगर आपको फुल एक समझ आया तो। फिर चैनल को अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो, ओके। जितना सब्सक्राइबर हमारा होगा ना, उस हिसाब से हमारे यूट्यूब चैनल को लोग, यूट्यूब जो होगा वो मोनेटाइज करेगा। फिर अगर हमारी फैमिली बढ़ेगी, यूट्यूब की फैमिली बढ़ेगी, सो आई कैन रिक्रूट मोर पीपल ना। जैसे कि मैं जो हूँ, मैं कोर फैकल्टी हूँ SST ओरिएंटेड। साइंस आपको अच्छे से कौन पढ़ाएगा, मैथ कौन पढ़ाएगा। मेरा जो एम है, इट इज़ टू give you a free education. For that I want someone, I have to recruit it ना, क्योंकि फ्री में मैं आपको, फ्री में तो मैं भी पढ़ा सकती हूँ। आप लोग बोलोगे फ्री में आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए ना बेटा, तो उसके लिए मुझे स्पेसिफिक पर्सन को रिक्रूट करना होगा। इसीलिए मैंने चंद्रयान बैच निकाला है कि आपको पहले मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँ, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत अच्छी हूँ। ज्योग्राफी मतलब टिप्स पे, ज्योग्राफी बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं ज्योग्राफी पहले पढ़ा रही हूँ। तब तक मोनेटाइजेशन होगा तो कोई साइंस के लिए मैं रखूँगी, कोई मैथ के लिए रखूँगी। मैंने बात किया था लोगों से दैट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इट, आई एम गिविंग यू दैट नेट कि मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूँगी, आपको वीडियो अपलोड करने का ज़रूरत नहीं है। मतलब पर्सन इज सेइंग कि आपका चैनल तो मोनेटाइज भी नहीं है, आपका चैनल तो, मतलब आपका चैनल तो ज़्यादा लोग जानते भी नहीं, कम से कम 100 लोग भी नहीं जानते, सब्सक्राइबर नहीं है, तो क्यों करें, वो भी कहीं सही ही है। व्हाट टू बी डन। तो इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल दैट डू शो योर लव फॉर मी एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. It's for your sake only, not for me. I need to provide you that free education that every child wants, that every child necessity. Okay, let's go to our concept, small scale map and large scale map. अब मुझे फटाफट, अगर आप लोग माइंड में सोचो कि स्मॉल स्केल मैप में ज़्यादा, मतलब जगह, स्मॉल वाले जगह को हम लोग एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे, या बड़े वाले एरिया को, या लार्ज स्केल मैप में बड़े वाले एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे या छोटे वाले एरिया को। बहुत लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होगी, बहुत लोग सही भी बोल रहे होंगे, कैसे कि लाइव है तो आई कांट सी योर कमेंट्स, बट देखो
तो अभी मैं बट मुझे जैसा लग रहा है इसमें मुझे भी कन्फ्यूजन हो कभी। फर्स्ट टाइम जब मैं पढ़ती थी तब मेरे सर ने समझाया कि इसे कैसे याद करना है, ये कैसे समझा जाए। देखो, स्मॉल स्केल मैप में ना, स्मॉल एरिया नहीं बोला है बच्चा, स्मॉल एरिया एंड स्मॉल स्केल में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। एग्ज़ाम में गलती करोगे तो फिर मैम आपके जो मार्क्स आपको मिलना चाहिए था आपके नॉलेज की वजह से, और जो मार्क्स आपको मिलेगा उसमें भी बहुत फ़र्क होगा। ओके, तो इसको अपने माइंड में डाल के रख लो एकदम अच्छे से, दैट स्मॉल स्केल मैप जो है लार्ज एरिया को स्मॉल में दिखाता है। जैसे कि अगर हम लोग वर्ल्ड का बात करें तो वर्ल्ड को हम लोग लार्ज स्केल में, लार्ज स्मॉल स्केल का मतलब क्या होता है पता है? 500 किलोमीटर को जब हम लोग 5 सेंटीमीटर में दिखाए, तो 500 किलोमीटर को जो 5 सेंटीमीटर में हम लोग दिखा रहे हैं, दैट्स मीन वी आर रिक्रिएटिंग मोर एरिया। लार्ज एरिया को शो कर रहे हैं छोटे जगह पे, और लार्ज स्केल मैप में वही 5 सेंटीमीटर को हम लोग 500 मीटर में करेंगे, ओनली ऑन द ग्राउंड। ओके, तो जैसे कि हम लोग, इफ़ आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया, आई हैव टू टेक स्मॉलर, आई हैव टू गो फॉर स्मॉल स्केल मैप। एंड इफ़ उसमें भी जो श्रीरामपुर जो एक सिटी है वेस्ट बंगाल, अगर मैं आपको बताऊँ इंडिया, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। अच्छा, मैं जहाँ पे रहती हूँ वेस्ट बंगाल, मैं यहीं पे बताती हूँ। देखो, इंडिया, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, हुगली, देन देर इज सिटी श्रीरामपुर, एंड देर इज ए घोषालपारा। ठीक है, और फिर यहाँ पे वार्ड नंबर 1। देख रहे हो कितना दुनिया कितनी बड़ी है। फिर से मैं उस टॉपिक पे स्टार्ट हो गई। अच्छा, तो ये क्या है हमारा, मैं क्या बता रही थी, लार्ज स्केल मैप। तो ये जो वार्ड नंबर 1 है, इसको मैं इंडिया वाले मैप में नहीं उतना कुछ खास शो नहीं करूँगी, राइट। सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन, मैं डेली हैंड की यूज़र हूँ। अगर आप लोग को मेरे मोटिवेशनल कोट चाहिए तो डेली हैंड पे मुझे फॉलो कर लो, @Ananya3019। मेरे फ्रेंड को भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती है इन मेरे आईडी में। देखो, इन लोग का अगर आईडी सिंपली सर्च करना है सरस्वती, अगर नहीं आ रहा है तो व्हाट यू कैन सर्च, चैप्टर नेम लिख देना एंड जस्ट सर्च @ अच्छा @ तुम्हारी मैम को ड्रॉ करना, अच्छा ऐसा ही होता है कुछ, फिर अनन्या $N नहीं। ओके, बहुत लोग को लगता होगा मेरे नाम में $N है। हाँ, मेरे नाम में $N है, बट जिन्होंने मैंने जब ईमेल साइन ये किया ना, तब मैंने एक एन डालना भूल गई, तो एक एन में डालना 3019। अच्छा, वो दिस इज़ 9। ओके, हम लोग को लगा था 3019 नहीं, बहुत लोग का क्वेश्चन आता है। ये मेरा लकी नंबर है। ओके, 3019 बहुत अच्छा नंबर है मेरा, बहुत ही लकी है, क्या बताया। अच्छा, ओनली ऑन द ग्राउंड, ये लार्ज स्केल में आप समझ लीजिए। डायरेक्शन समझते हैं, डायरेक्शन किसे नहीं पता, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। लेकिन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जैसे हम लोग पढ़े हैं ना बचपन में, बेटा वैसे नहीं पढ़ना। सबसे ऊपर जो होता है हमारे पास, इट इज ईस्ट। अच्छा, लेट मी गो फॉर दिस वन। दिस वन इज ईस्ट, दैट्स ऑटोमेटिकली मीन दैट दिस वन इज that automatically means that this one is west. Okay, here the confusion arises, this one is north, this one is south। तो अगर हम लोग बात करें, नॉर्थ है यानी हमारा नॉर्थन इंडिया, यहाँ पे हमारा हिमालय, अगर भारत का बात करें यहाँ पे हिमालय, यहाँ पे कोस्ट बंगाल सा, जैसे कि वेस्ट बंगाल ले लो, अरुणाचल प्रदेश एकदम वेस्टर्न वाला कोस्ट, यहाँ पे आ जाएगा ईस्टर्न, नहीं यहाँ पे आ जाएगा वेस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वेस्टर्न, साउथ इंडिया, समझे। कार्डिनल पॉइंट जो उसके मिडिल में होता है, ये देखो आई बताते हैं, रुक जाओ, ये वाले नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ के बीच, साउथ एंड ईस्ट के, कभी भी आप लोग WN मत लिखना या EN मत लिखना, नॉर्थ एंड साउथ बस यही डोमिनेट करेंगे, ईस्ट वेस्ट बाद में लिखाएगा। ओके, लिखेंगे हम। ओके,
सिम्बॉल्स क्या होता है, जैसे कि हमको बिल्डिंग शो करना है या रोड शो करना है। अब हम लोग रोड तो ड्रॉ करने जाएंगे नहीं या यहाँ पे लिखेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ सिम्बॉल्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम लोग एक सिंपल, अगर रिवर ड्रॉ करना है, एक सिंपल हम एक नैरो स्ट्रेच खींच देंगे ब्लू कलर का। एक यहाँ पे रोड ऐसे शो हो सकता है, हाईवे वाईवे, ठीक है। रेलवे अगर शो करना है तो यू कैन सिंपली शो लाइक दिस, ओके। ये और थोड़ा छोटे होते हैं, ओके। कन्वेक्शनल सिंबल एक ऐसे एक एग्रीमेंट हुआ था इंटरनेशनली कि अगर वर्ल्ड मैप को बनाया गया तो उसी कन्वेक्शनल सिंबल जो सबको यूज़ करेंगे उसी को यूज़ होता है, ओके। ये सारे सिंबल्स है, ज़रा ज़रा याद कर लेना, देख लेना क्या कैसे बताया गया है। अच्छा, बहुत लोग का हो सकता है कि बहुत लोग के पास PDF ना हो NCERT का। देखो मैं क्या करने वाली हूँ, अगर रीच वीच बढ़ा कुछ तो मैं ये जो सारे PDF है जिसमें सब मार्क्ड है ना, मैं तुम लोग को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी। अगर कुछ बढ़ेगा ना तो मैं टेलीग्राम चैनल भी बना लूँगी, फिर उसका लिंक आप लोग को मैं शेयर कर दूँगी। प्लीज़ हेल्प सपोर्ट करो, ओके। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस वाले पोर्शन का, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और जो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, ओके फाइन। अब येलो कलर से हम लोग प्लेटू को शो करते हैं, ग्रीन से ग्रास को, ब्राउन से माउंटेन को, एंड सॉरी ग्रीन से मैंने ग्रास बोल दिया, ग्रीन से प्लेन्स को, ब्लू से वाटर को, ओके। समझे वाला पूरा मैप। स्केच, एक स्केच जो होती है एक मेमोरी बेस्ड ड्राइंग होती है। अगर आप लोग CID देखते हो तो आप लोग को पता होगा कि क्या होता है ना, कोई भी अगर हो, देखो तो क्या होता है कि एक आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, ACP प्रद्युमन बुलाते हैं, और जो विटनेस है, जिसने देखा है उस खूनी को, अपराधी को, उसको वो बुलाते हैं और उसका स्केच बनवाते हैं। वो स्केच क्या होता है, जो विटनेस है उसके मेमोरी में है, उसने देखा है एक बार तो उसको पता है, इसीलिए उसका एक रफ स्केच बनाया जाता है कि हाँ वो कंपैरेटिवली या ऐसा दिखता होगा। अगर वो A है तो कम से कम एक 1, मतलब अगर वो A1 है तो कम से कम A तक तो पहुंचा ही देगा, B तक तो पहुंचा ही देगा, और बाकी देख के तुम लोग समझ ही जाओगे। प्लान, एक देखो प्लान जो लोग आर्किटेक्ट होते हैं ना वो लोग बनाते हैं, या प्लान तो हम लोग डेली लाइफ में बनाते हैं कि हाँ मुझे कल इतने बजे उठना है, स्कूल जाना है, ये करना है, वो करना है, बाकी सारे अपने काम करने हैं। तो ये भी एक प्लान होता है। एक प्लान है क्या होता है, एक ड्राइंग होता है स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। तो ये समझ लिया, मतलब स्मॉल एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, लार्ज स्केल को, लार्ज एरिया को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल स्केल में। आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखना, प्लीज़ मत रखना, मार्क्स ऐसे ही कट जाएगा तुम लोग का। But there are certain things which we may something want to know. For example, the length and breadth of a room which can be shown in a map. At that time, we can refer drawing to be called as scale called a plan. I think इतने डिटेल में गए, ये सारे चीज़ें तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे। एंड अगर आप लोग नहीं सॉल्व कर पाए तो देखो मेरे चैनल पे अगर आप लोग स्क्रॉल करोगे ना तो क्लास 6 के लिए मैंने एक यूनाइटेड बैच निकाला था, मैं लिख दूँ तो UNITED, उसमें मैंने एक पेपर लिया था और सारा क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया था क्लास 6 के ओरिएंटेड। तो वो सारे क्वेश्चन आंसर को अभी आप लोग देख सकते हो, अगर कोई डाउट हो तो उसमें भी कुछ खास व्यूज़ नहीं है, तो ऐसे आप ज़रा सा स्क्रॉल करोगे तो यूनाइटेड बैच आ जाएगा। और इस वीक तो मैं ज़रा भी फ्री नहीं हूँ, इसीलिए आपको जो यूट्यूब को कुछ करना है, जैसे कि प्लेलिस्ट बना देना या वो सारे काम तो नहीं हो पाएंगे। हाँ, आई विल ट्राई टू डू इट ऑन द नेक्स्ट वीक। टिल देन स्टे ट्यून, एंड इट हैज़ बीन वेरी लॉन्ग ऑफ स्टडिंग मैप्स। इट वॉज वेरी शॉर्ट चैप्टर, लेकिन बहुत ही डिटेल में गया हम लोगों के डेप्थ तक पढ़े। इट वॉज वर्थ इट, आई थिंक इट वॉज अ वर्थ इट session. So do like, share and subscribe. Ta-da!